Hello friends, today I am going to solve Polytechnic lecture examinations conducted by UPPSC. So I will solve only physics part here. So this particular paper contains two parts. Part 1 which is General Hindi question number 1 to 25 and part 2 which is Physics 1 question number 26 to 125. Okay, so I will solve particular these questions in particular this video. So let's start guys. Question 26. Two bodies of different mass are moving with same kinetic energy of translation. Which of the following is correct? Kinetic energy equal to p square by 2m. So their momentum equal to in the ratio of their masses. So body with greater mass will have the greater linear momentum. Question 27. The dimensional formula for latent heat is. So latent heat Q is equal to ml. Dimensional formula for heat equal to ml2 t minus 2. So divide by m, you will get the dimensional formula for latent heat. So it is option A m0 L2 t minus 2. Question 28. Oil floating on the surface of water appear colored in white light. The expected thickness of the oil film is. So just use the standard formula 2d sin theta is equal to n lambda 90 degree. It is just approximately 2d is equal to n lambda. So approximate value will be this option B. Although it is 1000 nanometer. But apart from this, there is no other option as correct because it is 10 nanometer. It is not correct. It should be more than 100 nanometer. Then it can also be correct. And 1 mm 1 centimeter it is not possible. Only one option is remaining, that is B, and it is correct option. Question 29. Position vector r of a particle varies with time t according to the following rt equal to sin square t I cap plus cos square t j cap units. What will be the acceleration at time t equal to pi by 4? So just solve it. Take the two order derivative, second derivative, and by putting the value t equal to pi by 4, it is giving the 0 value. Question 30. In Young's double slit experiment, interference pattern disappear when one of the slit is closed. That is correct. Interference occurs due to superposition of light waves from two coherent sources. That is also correct. But both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Question 31. In a Carnot engine, the temperature of sink is 27 degrees Celsius. If the efficiency of engine is 40%, then the temperature of source will be. So efficiency equal to 1 minus T2 by T1. It is the lower temperature and it is the higher temperature. Here it is a sink, and by putting these values, you can find the temperature. Put all the values of temperature in Kelvin, absolute temperature. Okay. So option B is correct here. Question 32. Which of the following is an odd function? For an odd function, when you put minus x in the function, it will be minus fx. So f minus x equal to minus fx. In that condition, it is an odd function. So here it is only B is the odd function. Other in this case, it is your even function. This is even function. And sin minus x is equal to minus sin x. So multiplied by minus x, again it is a positive. So it is also an even function. So option B is correct here. Question 33. The fundamental law of classical mechanics is. Most of the formulas of classical mechanics is based on particular this. F is equal to ma, Newton's second law. But I am not sure, so I am putting it grey list. Just cross check from your side. Question 34. In Michelson interferometer with monochromatic light, when mirrors are exactly perpendicular, the fringes are. So the fringes are circular. Option B is correct. Question 35. A ray of light is incident on the surface of a glass plate of refractive index 1.5 at polarizing angle. What is the angle of polarization? Theta p equal to tan inverse 1.5. It is your refractive index of the glass plate. So result is 56.3 degree. Question 36. If y equal to 1 divided by tan hyperbolic x, then x is. So from here, x equal to tan hyperbolic inverse 1 by y. And tan hyperbolic inverse of a normal case, y का value क्या होता है? Half log 1 plus y divided by 1 minus y. In place of y, put 1 by y and solve it. So you will get that option D is correct. ln square root y plus 1 divided by y minus 1. Question 37. If I cap, j cap and k cap are the unit vectors along x, y and z axis respectively, then which of the following is incorrect? I cap dot I cap is equal to 1 because angle between them is equal to 0. I cap dot I cap is equal to mod of I cos. Similarly, j dot j cap equal to 1, k cap dot k cap equal to 1. So all are correct here. So none of the above. Question 38. A parallel beam of light of wavelength 5460 angstrom is incident at an angle of 30 on a plane transmission grating which has 6000 lines per centimeter. The highest order spectrum that can be seen is.
For normal incident, standard formula is equal to E plus B sin theta is equal to m lambda. This is your grating element. For grating element, just put 1 divided by n. N is equal to total number of lines on the grating. Okay, but here it is incident at a 30 degree. For that condition, d sin theta incident plus sin theta reflected is equal to m lambda. For maximum order, just put it here, theta reflected is equal to 90 degree. So after solving it, maximum order is equal to 4. Just 4.57 truncate it and the integer value is equal to 4. So maximum order one can get is 4. Please cross check this question also from your side. Question 39. Consider the tossing of a die. What will be the probability that the die exhibit either the number 1 or number 2? तो die में 6 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पॉसिबिलिटीज रहेंगे. उसमें से आपको कौन कौन सा फेवर कर रहा है? तो ओनली 1 और 2, दो नंबर हुए. 2/6 दैट इज 1/3 इज your correct answer. Question 40. Fraunhofer spectrum is a line absorption spectrum. 41. Which of the following states Clausius theorem for a reversible Carnot cycle? तो for a reversible cycle, cyclic integration del q reversible divided by t equal to 0 होता है. Option C may be correct. Find dq by dt is equal to 0. So putting this in the gray list, cross check from your side. Question 42. In producing cooling by adiabatic demagnetization, we use paramagnetic substances. Question 43. If mu naught, epsilon naught are permeability and permittivity of free space respectively, then what is the speed of light in the free space? So 1 divided by square root mu naught epsilon naught. Question 44. The first derivative of a Lagrange function L3x, that is ddx of L3x is equal to, तो Lagrange polynomial उसके लिए जो फंक्शन है का L3x इक्वल टू क्या होगा? -x³ प्लस 9x² माइनस 18x प्लस 6. टेक द डेरिवेटिव, तो आ जाएगा -3x² प्लस 18x माइनस 18. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन 45. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट सरफेस एरिया फॉर अ गिवन वॉल्यूम? The sphere has the least surface area for a given same volume for others. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन 46. फेज स्पेस फॉर अ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ कांस्टेंट एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. टोटल एनर्जी इक्वल टू दिस. तो हाफ के क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई 2m इक्वल टू ई. जब इसको आप प्लॉट करोगे क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई सम कांस्टेंट, पी स्क्वायर डिवाइड बाई सम कांस्टेंट, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ एलिप्स. क्वेश्चन 47. एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन एज dy by dx इक्वल टू fxy. हाउ मेनी इनिशियल कंडीशन will be required to solve it? तो one initial condition will require to solve it. Option B is correct. Question 48. The internal energy of a system changes in adiabatic change. तो इंटरनल एनर्जी कब चेंज होगा? जब आपका टेम्परेचर का कुछ चेंज होगा. तो आइसोथर्मल में नहीं होगा. फ्री एक्सपेंशन में भी आउटसाइड से कोई भी हीट या वर्क नहीं होता है. ये भी आपका कोई भी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा. इन द केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस इट्स आल्सो डेल्टा टी इक्वल टू 0. तो देयर इज नो इंटरनल चेंज इन साइक्लिक प्रोसेस एज वेल. तो ओनली एडियाबेटिक चेंज में आपका यहाँ पर इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा. क्वेश्चन 49. इफ c इज स्पीड ऑफ लाइट, देन एट व्हाट स्पीड द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज n टाइम्स इट्स रेस्ट मास एनर्जी. तो रेस्ट मास एनर्जी क्या होगा? m0 c स्क्वायर. और आपका जो रिलेटिविस्टिक एनर्जी हो जाएगा m0 c स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर. यहाँ से n टाइम्स के लिए बोल रहा है तो जस्ट मल्टीप्लाई बाई n एंड सॉल्व इट. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. क्वेश्चन 5. इफ द सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग देन द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग इज. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. रिजॉल्विंग पावर equal to lambda by delta lambda equal to mn, where n equal to capital N equal to number of lines and small m order of diffraction. So here they are taken a small n in place of small m. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन 51. व्हाट इज कंजर्व्ड इन एन इनइलास्टिक कोलिजन? तो इन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व्ड. तो मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन इलास्टिक, आइदर इलास्टिक और इनइलास्टिक. इन बोथ कंडीशन मोमेंटम इज कंजर्व्ड. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर. Question 52. What will be the thickness of a quarter wave plate made of quartz for a wavelength lambda equal to 5000 angstrom and refractive index mu ordinary equal to 1.55 and mu e या extraordinary equal to 1.543. So just use the formula d equal to lambda divided by 4 n0 minus ne. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑर्डिनरी केस के लिए एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस के लिए. आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दैट ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन 53. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर z इक्वल टू ln x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर? तो देखने से आपको लगेगा कि फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए, बट व्हेन यू टेक द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, टू ऑर्डर डेरिवेटिव del 2z by del x स्क्वायर, एंड सिमिलरली फॉर y स्क्वायर तो del 2z
डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर, और उसको जब दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का जो वैल्यू आएगा 0 आएगा ऐड करने के बाद। तो दैट सिंप्लाइज आपका जो डेल टू जेड डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर। ओके, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 54, अ मेटल बॉल हैज अ सरफेस एरिया ऑफ 200 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड टेम्परेचर इज 527 डिग्री सेल्सियस। द बॉल इज kept in a vessel at 27 degrees Celsius. If the emissivity of the metal is 0.4, then the rate of the loss of heat is equal to, the rate of loss of heat equal to sigma A T1 raised to power 4 minus T2 raised to power 4 into emissivity. इसको सॉल्व करेंगे आप वैल्यू पुट करने के बाद, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 182 वाट। क्वेश्चन 55, हीलियम नियॉन लेजर इज अ 4 लेवल लेजर। Question 56, two beams made of same material have equal lengths and equal weights. First one has circular cross section and the second has square cross section. What will be the ratio of loads required to produce equal depression? तो डिप्रेशन का फॉर्मूला आपका हो गया डेल्टा इक्वल टू डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइड बाई 3y/i। तो W आपका लोड हो गया, सेम मटेरियल है, इक्वल लेंथ एंड इक्वल वेट्स, तो W सेम हो गया, सेम मटेरियल है तो Y भी आपका सेम हो जाएगा, एंड लेंथ भी सेम है तो यहाँ पर L क्यूब भी सेम हो गया। जस्ट डिफरेंस इज इन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया टर्न। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज BD क्यूब डिवाइड 12 फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई R रेस्ट पावर 4 डिवाइड बाई 4, एंड फॉर द स्क्वायर बीम क्या हो जाएगा, I2 इक्वल टू जस्ट B इक्वल टू D, तो आपका B रेस्ट पावर 4 डिवाइड बाई 12 एज B इक्वल टू D। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। पर्टिकुलर आपका क्या है यहाँ पर, अब उसको वेट भी सेम है, इनका जो आपका वॉल्यूम रहेगा वो भी आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम मटेरियल है, तो पाई R स्क्वायर इनटू L, इट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल बिकॉज क्रॉस सेक्शन इज द सर्कुलर, तो ये सिलेंडर में हो जाएगा। लेंथ आपका L है, इन दैट कंडीशन पाई R स्क्वायर L इक्वल टू B स्क्वायर L, तो स्क्वायर है तो जो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, लेट्स विड्थ इक्वल टू B, देन B स्क्वायर हो जाएगा इनटू L, तो आपका यहाँ से मिल जाएगा पाई R स्क्वायर बाई B स्क्वायर। अब जस्ट इस फॉर्मूला में पुट कीजिए, बाकी सब कट जाएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बचेगा, एंड फाइनली आपका जो आंसर आएगा π/3। Question 57, Venturimeter is based on Bernoulli's theorem. Question 58, the solution of the equation y double prime plus 4y equal to 0 are given by y1 equal to sin 2x and y2 equal to cos 2x. Wronskian for these function is, तो ये आपका पर्टिकुलर आप देख सकते हैं कि रॉन्स्कियन कैसे निकालते हैं। तो रॉन्स्कियन टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस कि जो आपका जो सोल्यूशन है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं, इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो उसके लिए निकाला जाता है डिटर्मिनेंट निकाल कर। यहाँ पर जैसे y1 है, फिर उसका डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, y2 है तो उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। ठीक, एक एग्जाम्पल है, आपका मेन क्वेश्चन यहाँ पे है, तो y1 आपका यहाँ पर साइन 2x है, y2 cos 2x है, तो y1 प्राइम क्या हो जाएगा 2 cos 2x एंड y2 प्राइम हो जाएगा -2 sin 2x। आप पर्टिकुलर इस मैट्रिक्स में पुट कर दीजिए, तो आपका जो रॉन्स्कियन आएगा -2 sin स्क्वायर 2x -2 cos स्क्वायर 2x, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, आप -2 बाहर ले लोगे तो cos स्क्वायर 2x प्लस sin स्क्वायर 2x हो जाएगा, 1 हो जाता है, तो ये -2 आपका सोल्यूशन आएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 59, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट। तो सॉलिड में साउंड को हमेशा एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, और सॉलिड में आपका स्पीड होता है दैट इज मैक्सिमम, तो साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन द सॉलिड। क्वेश्चन 60, व्हाट इज द नंबर ऑफ नोडल पॉइंट्स इन अ कोएक्सियल लेंस सिस्टम। तो आप कोएक्सियल लेंस सिस्टम देख लीजिए, द लेंस सिस्टम विच हैव अ कॉमन ऑप्टिकल एक्सिस इज नोन एज कोएक्सियल लेंस system. It consists number of lenses placed apart with a common optical axis known as principal axis. In optical system consists of 6 cardinal points which are 2 focal point, 2 nodal points and 2 principal points. The option C is correct. Question 61. Consider a collection of n two-level system in a thermal equilibrium at absolute temperature T. Each system has only 2 states, one ground state of energy 0 and n excited state of energy epsilon. What will be the partition function? तो partition function क्या हो जाएगा, e raised to power minus e by kBt होता है, तो यहाँ पर 0 के लिए 0 हो जाएगा, ये आपका माइनस एप्सिलॉन बाई kBt हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 62, if fx and gx are the odd functions then which of the following is incorrect। तो fx और gx के ऑड है तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इक्विवेलेंट फंक्शन होगा, तो ऑप्शन ए दैट fx gx इज एन ऑड फंक्शन इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 63, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट इन विच डॉपलर इफेक्ट इज नॉट अप्लीकेबल। टू डिटरमाइन द अर्थ रेडियस इट इज नॉट अप्लीकेबल, otherwise in astronomy discovery of twin star, determine the velocity of Milky Way and to determine the velocity of submarine it is useful. Question 64, if aij and bij are tensors of rank 2 then what will be the rank of tensor aij and bij। और समेशन तभी होगा जब ये सेम रैंक के रहेंगे, सब्सट्रैक्शन हो या समेशन हो,
तो इनका रैंक भी सेम होना चाहिए और इनके पास जो सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे उसके बाद भी जो रिजल्टेंट आएगा उसका भी रैंक सेम होता है। तो 2 इज करेक्ट ऑप्शन हियर। क्वेश्चन 65 एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इन रिवर्सिबल साइकिल। तो रिवर्सिबल साइकिल के लिए क्या होगा, रिमेन अनचेंज। इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, वेयर इज इन एन irreversible process the entropy of the universe increases. Question 66 how much force is required to change the velocity of a body of mass 1 kg from 20 meter per second to 30 meter per second in 2 seconds. तो just use the formula F equal to ma। तो एक्सेलरेशन निकाल लीजिए v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1 आ जाएगा 30 माइनस 20 डिवाइड बाई 2 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाई मास कर देंगे तो 5 न्यूटन आ जाएगा। क्वेश्चन 67 लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन b इज लेस देन c। B is correct. Question 68 for which of the following Lissajous figure will be circle। तो सर्कल होने के लिए जो आपका फेज डिफरेंस होना चाहिए π/2 का होना चाहिए। तो कास और साइन में π/2 का फेज डिफरेंस होता है। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 69 which of the following statement is correct about optically active substance। तो optically active substance rotate the plane of polarization of polarized light। Question 70 Kronecker delta is mixed tensor, what is its rank? Its rank is 2। 71 speed distribution for a group of 25 particles is given below, what will be the root mean square speed। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, स्क्वायर रूट समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन। यहाँ सॉल्व करेंगे 3.49 आंसर आएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 72 विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स डॉपलर्स फ्रीक्वेंसी शिफ्ट डेल्टा न्यू। तो जो आपका फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होता है ये आपको फार्मूला होता है, आपका वी क्या है, आपका जो लाइट हुआ साउंड हुआ उसकी वेलोसिटी हुई, ये आपका वी नॉट ए पर्टिकुलर इट इज ए ऑब्जर्वर्स, ठीक है, उसका वेलोसिटी हुआ, उसका पर्टिकुलर स्पीड हुआ और ये आपका सोर्स। तो हियर दे आर टेकिंग दैट कि जो आपका सोर्स है वो रेस्ट में होगा और जो वी है वो लाइट है, तो यहाँ पर सी कर दिए हैं। तो सी प्लस माइनस वी नॉट बाई सी कर देंगे, यहाँ पर 1 प्लस माइनस वी नॉट बाई सी आ जाएगा या वी बाई सी आ जाएगा। क्या पूछ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट डेल्टा न्यू। तो डेल्टा न्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस न्यू इंटू वी बाई सी। जो चेंज हो रहा है उसको ही बोल रहे हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 73 Surface temperature of an object is 34 degrees Celsius. What is the wavelength of most intense radiation from this object? Wins constant is 2.898 into 10 to power minus 3 millikelvin. T into lambda m equal to b constant होता है। जस्ट इसको आप पुट करके सॉल्व कीजिए तो आपका ऑप्शन आएगा डी 9.44 माइक्रोमीटर। क्वेश्चन 74 एट द सेम टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सर्ट ग्रेटर प्रेशर, ग्रेटेस्ट प्रेशर। तो ये आपका जीडीसी का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा हुआ था। तो गैस ऑफ फर्मियंस एक्सर्ट मैक्सिमम प्रेशर ड्यू टू द देयर रिपल्सिव नेचर। रिपल्सिव नेचर वाई, बिकॉज दे फॉलो द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। द गैस ऑफ फर्मियंस एक्सर्ट मैक्सिमम प्रेशर। Question 75 covariant tensor of second rank A mu nu is said to be symmetric if A mu nu is equal to A nu mu. I am a little bit confused here, so I am putting it in the gray list. Question 76 the coordinates of the displacement of a particle are x equal to A sin omega t and y equal to B cos omega t. Path of the particle is, the path of the particle will be a elliptical, okay, because they are not mentioning A and B. It can be different or same. सेम होने पर साइकिल हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा, डिफरेंट होने पर आपका इलिप्टिकल रहेगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 77 व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ रिजिड बॉडी हैविंग n पार्टिकल्स। तो रिजिड बॉडी के लिए क्या होगा, 3 डायमेंशनल रिजिड बॉडी रहेगा। तो 3 डायमेंशनल रिजिड बॉडीज हैव 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 ट्रांसलेशनल्स एंड 3 रोटेशनल्स, ओके। तो 6 होना चाहिए। एंड फॉर 2 डायमेंशनल रिजिड बॉडी, कोई रिजिड बॉडी उसको आपको 2 डायमेंशन में मूव करने को बस बोला जा रहा है। इन दैट कंडीशन इट हैज एक्स वाई एंड थीटा, तो मतलब 3 डिग्री ऑफ रोटेशन। तो हियर इट इज आस्किंग रिजिड बॉडी हैविंग n पार्टिकल्स, तो n का कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है, तो आपका यहाँ पर 6 ऑप्शन होना चाहिए था। तो जस्ट आई एम कीपिंग इन द ग्रे लिस्ट, दे आर जस्ट कंसिडरिंग ओनली द ट्रांसलेशन, okay, that's why they are taking the 3 here. Question 78 the volume of a solid does not vary with pressure, what will be the Poisson ratio? If volume is not changing with pressure, then Poisson ratio is equal to 0.5. so option D is correct here. Question 79 what should be the minimum number of lines in a grating to resolve sodium doublet 5890 and angstrom and 5896 angstrom in third spectral order? तो resolving power क्या होता है, lambda divided by delta lambda equal to mn. तो just don't forget to keep here 3. तो 5896 divided by 6 equal to 3 into n. तो आपका जो n आएगा 328 लाइन्स आएगा। क्वेश्चन 80 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम कंटेन्स 53 संडे। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, तो 52 into 7
तो आपका 2 डेज बच रहा है, उसमें आप चूज करना है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उसमें एक संडे होता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंटेनिंग 53 संडे इक्वल टू 2/7। क्वेश्चन 81 वर्किंग ऑफ लेजर इज बेस्ड ऑन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। क्वेश्चन 82 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ सरफेस टेंशन। तो आपका फ्लो ऑफ लिक्विड इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ सरफेस टेंशन। क्वेश्चन 83 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट रिलेशन। डीएच क्या दिया यहाँ पर TdS माइनस VdP। तो यहाँ पर एच है, जब इसको आप डेरिवेटिव लोगे डीएच करोगे तो DE प्लस PdV प्लस VdP आएगा। DE की वैल्यू रखोगे तो TdS क्या हो जाएगा, TdS रहेगा, यहाँ पर TdS हो गया। और दूसरा क्या बचेगा, VdP बचेगा। प्लस का साइन होना चाहिए बट हियर इट इज माइनस साइन, दैट्स व्हाई इट इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन 84 चूज द करेक्ट रिलेशन अमंग इलास्टिक कांस्टेंट Y, K एंड ईटा फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। ये आपका फार्मूला होता है, इसके थ्रू आप इसको निकाल लो, तो ऑप्शन डी आपको करेक्ट है। क्वेश्चन 85 कंसीडर द 2 आइसोटोप्स 3He एंड 4He ऑफ हीलियम विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 3 हीलियम है, ये फर्मियान होता है, और जो 4 हीलियम होता है वो बोसान होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 86 स्टील इज, तो स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 87 2 drops of water of same size are falling through air with terminal velocity 2 meter per second. If they combine to form a single drop, what will be the new terminal velocity? तो terminal velocity का जो पर्टिकुलर फार्मूला होता है V इक्वल टू 2/9 R स्क्वायर रो माइनस सिग्मा G डिवाइड बाई ईटा। ठीक, बाकी सब कांस्टेंट रहेगा, बस R की वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 ड्रॉप को मिलाकर 1 कर दिया गया है। तो 4/3 पाई R2 क्यूब इक्वल टू 2 टाइम्स 4/3 पाई R1 जो पहले था। तो आप देखेंगे R2 बाई R1 क्यूब इक्वल टू 2 बचेगा आपका, तो R2 बाई R1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2⁻² आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 88 रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ 2 वेव्स इज 1:9। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी इफ दीज वेव्स इंटरफेयर। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए बोल रहा है, मिनिमम के लिए, तो रेशियो क्या है 1:9। उनका जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो किस में हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, तो 1:3 में हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड को जोड़कर स्क्वायर कर देंगे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो 3 + 1 4 का स्क्वायर, और मिनिमम के लिए इसको हटाकर स्क्वायर कर दीजिए, 3 - 1 दैट इज 2 का स्क्वायर, तो 16:4 मतलब 4:1 इज द करेक्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 89 अ बीम ऑफ circularly polarized light is passed through a quarter wave plate. The emergent light is plane polarized light. Question 90 which of the following is conservative force? तो जितने भी सेंट्रल फोर्सेस होते हैं वो कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स हियर। क्वेश्चन 91 the cross product of 2 polar vectors is a pseudo vector and pseudo vectors also called as axial vectors. So B is correct. Question 92 4 phase points are distributed in 2 cells I and J in phase space. Thermodynamic probability for microstate Ni equal to 3 and Nj equal to 1 is. Thermodynamic probabilities W is the number of processes by which the state of physical system can be realized. तो नंबर ऑफ जितने पॉसिबल वेज हों वही आपका W है, यहाँ प्रोबेबिलिटी बताता है। 2 सेल्स हैं I एंड J, I एंड Nj, यहाँ पर हम भरना है इसको हमको। तो Ni एंड Nj आर नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स आर मॉलिक्यूल्स इन द सेल इन पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स क्या हो जाएगा, या तो आप चारों एक में भर दीजिए Ni में, या तो आप जब चारों इसमें भरेंगे तो इसमें 0 हो जाएगा, इसमें 3 भर सकते हैं, इसमें 1 भर सकते हैं, इसमें 2 फिल कर सकते हैं, यू कैन फिल हियर 2 हियर 1 देन हियर 3 देयर 0 देन हियर 4। ठीक, ये आप पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर। अब क्या कर रहा है, कंसीडर माइक्रोस्टेट्स करस्पॉन्डिंग टू Ni के लिए जो I सेल है उसमें आपको कितना रखना है, 3 एटम्स या 3 मॉलिक्यूल्स या जो भी फेज पॉइंट्स रखने हैं, और दूसरे में क्या है 1 रखना है। तो अगर आपका ABCD था तो आपका कॉम्बिनेशन में अगर देखेंगे तो 3 इसमें रखना है, 1 इसमें रखना है, तो ABCD इस तरह करके 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, 4 पॉसिबिलिटीज रहेंगी। थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटीज क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट 4। क्वेश्चन 93 व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ gradient of scalar field phi equal to xy plus yz plus zx at 1 1 1। तो डेल फाई क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, डेल ओवर डेल एक्स फाई आई, डेल फाई बाई डेल वाई जे कैप एंड डेल फाई बाई डेल जेड के कैप। इसको निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, जो एम्पलीट्यूड आएगा 2√3 आंसर आएगा। क्वेश्चन 94 इफ द सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग देन विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ टॉर्सनल ऑसिलेशन। तो आपका क्या है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1/2 पाई स्क्वायर रूट के डिवाइड बाई आई। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 95 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैक्सवेल्स थर्मोडायनामिक रिलेशन। तो ये बहुत सिंपल है याद करने के लिए, इतना सिंपल है कि बस आपको याद होना चाहिए SPTV, और दूसरा टीवी के बाद थोड़ा पहले ला दीजिए तो TVSP, ये 2 टर्म आपको याद होने चाहिए, यही से स्टार्ट करना होता है। आइदर इट विल स्टार्ट फ्रॉम S और इट स्टार्ट फ्रॉम द T। ठीक है, जैसे यहाँ पे T से स्टार्ट हो रहा है, ये V वाला तो नहीं होगा। ठीक है, अब सेकंड क्या याद करना है, इफ इट इज गोइंग टू क्लॉकवाइज देन पॉजिटिव, इट इज गोइंग टू एंटी क्लॉकवाइज देन नेगेटिव। स्टार्ट फ्रॉम हियर, ऑप्शन ए।
PTV क्लॉकवाइज, SPTV तो पॉजिटिव सही है। दूसरा TVSP, TVSP एंटी क्लॉकवाइज, TVSP निगेटिव, ये भी सही है। थर्ड सी का क्या है, TVSP क्लॉकवाइज, TVSP अगेन पॉजिटिव, सही है, करेक्ट। और जो आपका डी ऑप्शन बचा है दैट इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन 96, गिब्स पैराडॉक्स इज इन स्टैटिकल मैकेनिक्स इज रिलेटेड टू द एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ तो एंट्रोपी, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। Question 97. Wavelength of light used in an optical instrument lambda 1 equal to 4000 angstrom and lambda 2 equal to 5000 angstrom. The ratio of their respective resolving power. Resolving power क्या हो जाएगा? Proportional to 1 by lambda. तो option B is correct. 5:4. Question 98. Two capillary tubes of same material having radii 1 mm and 2 mm respectively are immersed in a liquid. If the liquid rises to 30 cm in the first, then the height in the second. मतलब जो mm डायमीटर वाला है, रेडियाई वाला है, उसमें आपका 30 सेंटीमीटर गया तो दूसरे में कितना जाएगा? तो जो हाइट होता है प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रेडियाई। आप रेडियाई जब बढ़ा दोगे इसका तो उसी अनुपात में आपका जो लेंथ है, उसका जो हाइट है, राइजिंग हाइट, वो कम हो जाएगा। तो 15 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 99, फेज वेलोसिटी ऑफ रिपल्स ऑन अ लिक्विड सरफेस इज 2 पाई t by lambda rho। तो 2 पाई बाई lambda मतलब क्या होता है? तो kt by rho, where t is surface tension and rho is the density of liquid. What will be the group velocity? तो यहाँ पर क्या दे दिया? Vp दे दिया है kt by rho, 2 पाई बाई lambda इक्वल टू kt। तो आपको ग्रुप वेलोसिटी पूछा है, तो Vp क्या हो जाएगा? कितना दिया हुआ है यहाँ पर? kt by rho, और इसको 1 by k से मल्टीप्लाई कर लेंगे, k क्यूब हो जाएगा t by rho। तो ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा इज दिस वैल्यू हो जाएगा k क्यूब t by rho। टेक द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव लेने पर क्या हो जाएगा? 3/2 Vp आ जाएगा। दैट्स मीन ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question 100. A laser beam has pulse power 10 to power 12 watt. It is focused on an object of area 10 to power minus 4 centimeter square. What will be the energy flux? Energy flux के लिए क्या हो जाएगा? Pulse power divided by area 10 to power 16 watt per centimeter square. Option B is correct. Question 101. Ratio of focal length of two lenses of Huygens eyepiece. तो Huygens eyepiece में क्या होगा आपका? ये आपका जो focal length होता है, इनका रेशियो होता है 3:1 and distance between them is equal to the difference in their focal length. मतलब 2f डिस्टेंस पे होते हैं, एक जो फोकल लेंथ होगा वो 3f होगा और एक का f होगा। क्वेश्चन 102, A piece of ice is added to a cup of water. Its entropy. तो entropy बढ़ जाएगी, increase कर जाएगी। The greater of the randomness in the system, greater is the entropy. The randomness in greater in liquid state H compared to solid state, so that entropy increases when ice melts into water. ठीक है ना? तो इसकी entropy क्या हो जाएगी? Increase करेगा। Question 103. In ideal gas is compressed isothermally. The process is. तो जो आइसोथर्मली इसमें प्रोसेस आपका रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है। तो आइदर ए और बी। Question 104. Which of the following is a unit vector in yz plane and perpendicular to the vector I cap plus j cap plus k cap? तो यूनिट वेक्टर मतलब उनका मार्ड लेने पर आपका 1 आना चाहिए और इसके साथ जब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 आना चाहिए। देन ओनली इट इज परपेंडिकुलर। आपका पर्टिकुलर इस केस में क्या हो जाएगा? ये आपका 0 देगा इसका डॉट प्रोडक्ट विद दिस। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। Question 105. Bessel's function j half is given by. Bessel's function j half is equal to square root 2 by pi x sin x और j minus half is equal to square root 2 by pi x cos x. Question 106. Which of the following gives the resolving power of a telescope whose objective diameter is d? तो ऑप्शन A is correct. 1.22 lambda by d. Question 107. Increase in length of a wire on stretching is 0.025% if its Poisson ratio is equal to 0.4. Then what will be the percentage decrease in the diameter of the wire? तो lateral strain divided by longitudinal strain equal to your sigma. तो जस्ट सॉल्व कर लीजिए, डेल्टा डी बाई डी क्या हो जाएगा? 0.1%। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 108. द पार्टिकल्स ओबेइंग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स। तो ये गैस मॉलिक्यूल्स हो गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इलेक्ट्रॉन्स हो गए या फिर आपका प्रोटॉन्स हो गए, ये आपका फर्मियन फॉलो करते हैं और जो फोटॉन्स होते हैं वो बी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं। 109. सरफेस टेंशन ऑफ अ सोप सॉल्यूशन इज 1.9 into 10 to power minus 2 Newton per meter. Pressure difference on both sides of a soap bubble of diameter 2 centimeter will be. तो जो एक्सेस प्रेशर का होता है फार्मूला मैं उसको यूज कर रहा हूँ, डेल्टा पी इक्वल टू 40/r। उसको सॉल्व करेंगे तो आपका 4 आफ्टर सॉल्व करने पर 7.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। आई एम कीपिंग दिस इन ग्रे लिस्ट बिकॉज ये जो प्रेशर पूछ रहा है ये सेम प्रेशर पूछ रहा है या डिफरेंट, आई डोंट नो। तो जस्ट ग्रे लिस्ट क्रॉस चेक फ्रॉम योर साइड। क्वेश्चन 110. विच इज द वैल्यू ऑफ j हाफ स्क्वायर प्लस j माइनस हाफ स्क्वायर? बेसल्स फंक्शन से तो आप पर्टिकुलर j हाफ एंड j माइनस हाफ की वैल्यू है, जस्ट स्क्वायर इट एंड ऐड। तो ऐड करने पर आपका आ जाएगा 2 by pi x। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 111. द थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन कार्नोट इंजन। तो आपका इफिशियंसी इक्वल टू 1 - TL/TH होता है। तो TH एंड TL कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन द थर्मोडायनेमिक
टेम्परेचर स्केल, और बाकी तो नहीं होंगे। तो 112 फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1 इन इंटरवल 0 to पाई। तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालेंगे और पुट एफ एक्स इक्वल टू 1 हियर एंड सॉल्व इट, इट इज गिविंग 0 वैल्यू। क्वेश्चन 113 वेलोसिटी ऑफ मैकेनिकल वेव इन अ मीडियम डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी, इनर्शिया एंड फिजिकल स्टेट ऑफ द मीडियम। क्वेश्चन 114 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट a0 in the Fourier series of t square in the interval minus pi to pi? To just solve it, and a0 is equal to 1 by 2 pi minus pi to pi integration t square dt. After solving you will get pi square by 3. So option B is correct here. Question 115 which of the following correctly represents theoretical limit of Poisson ratio? So its limit is from -1 to 0.5. So option B is correct here, and some Poisson value for other materials. Okay. Question 116 Fermi-Dirac statistics cannot be applied for, so it will not applied for photons. Photons are bosons, ठीक है, तो वहाँ पर BE लगेगा, इन्हें लगेगा, बाकी सब पर Fermi-Dirac distribution लगेगा। Photons is correct option. Question 117 Harmonic oscillator energies are given by En equal to n plus half h cut omega n equal to 0 1 2 3. It is in thermal equilibrium with some heat reservoir at absolute temperature T. What will be the partition function? तो partition function निकालिए, तो option B is correct here. Beta is equal to 1 divided by kBT. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 118 इफ मास ऑफ क्लोरीन एटम इज m देन व्हाट विल बी द रिड्यूस्ड मास ऑफ द क्लोरीन मॉलिक्यूल? तो m/2 हो जाएगा, सेम मास होने पर जस्ट m/2 हो जाता है। क्वेश्चन 119 स्टीयरिंग ऑफ सैटेलाइट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इट इज बेस्ड ऑन द एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। 120 बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन इज अ फेज ट्रांजिशन ऑफ, it is a second order phase transition. Question 121 the value of lambda for which vector 2i cap plus j cap plus 3k cap and i cap minus lambda j cap plus 4k cap are perpendicular, take the dot product and equal to 0, you will find out A is correct. 14 option A is correct. Question 122 transport phenomena in gas represents the transport of certain quantities विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से कोई भी करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। विस्कोसिटी में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट फिनोमेना मोमेंटम होता है। कंडक्शन में क्या होता है? एनर्जी होता है। डिफ्यूजन में मास होता है। क्वेश्चन 123 विथ द डिक्रीज इन द प्रिज्म एंगल द एंगुलर डिस्पर्सन बिटवीन रेड एंड वायलेट रेज। तो एंगुलर डिस्पर्सन क्या है? एक पर्टिकुलर फार्मूला है। अब जब इसको कम कर देंगे, प्रिज्म एंगल को कम करेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो डिक्रीज कर जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। 124 तो पॉलिटेक्निक फिजिक्स पार्ट 2 solution will come in next 1 or 2 days. Okay, and please like, comment and subscribe. जो भी अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, आप कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन 124 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल H1? तो हर्माइट पॉलिनोमियल की कुछ वैल्यूज यहाँ पर लिस्टेड है। H1 क्या होता है? 2x होता है। यहाँ पर जाई के टर्म में दिया 2जाई। क्वेश्चन 125 कंसिडर एन पार्टिकल सिस्टम व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ फेज स्पेस इफ पार्टिकल हैव 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो 3 तो ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले से रहेगा, प्लस 2 रोटेशनल कर दे रहा है, तो 5 पोजिशनल इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, जिसमें 3 ट्रांसलेशन हो जाएगा, 2 रोटेशनल हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग कंजुगेट मोमेंटा निकालेंगे तो 5 कंजुगेट मोमेंटा आ जाएगा। तो इन दिस वे इट इज 10 n डायमेंशनल फेज स्पेस। ओके, ऑप्शन डी is correct. It is free particle, not a rigid particle. So in this way option D is correct, 10n. Okay guys, if you are find some answer is wrong, then just write in the comment box, and whenever UPPSC या commission will provide the answer key, I will put the corrected answer in the pinned box. Okay, from my side these are the answers. If there is some mistakes or some wrong answers, then I will correct it in the pinned message. Thank you, and your Polytechnic Physics 2 part comes soon, maybe tomorrow late night or day after tomorrow morning. Bye. Thank you.